लेटे लेटे कौन क्लास ज्वाइन करता है यार भाई? पवन, जय श्री राम। कैमरा बंद कर लो अभिषेक भैया। कर लिया। Good evening, everyone. So in last class, we have discussed the various components of your syllabus. So today we are going to start with the your first unit, and that first unit is all about what are the various symbols and components of the in any system or any electrical diagram, and then we're going to see how we can represent this diagram into the our system. So these are the things that we are going to cover today. So let's start with your first things, which is the electrical symbols that will be used into the electrical symbol that will be used for the representing any electrical components. So for doing this, uh, let's start with this, and then we will go through one by one. So before starting this class, I am just telling you one instruction, and the instruction is that whenever you join any class, my class, you will turn off your camera and you should not turn off your camera and microphone and do not make any noise into the class. All of you got my point, I hope. So whenever you are joining, just turn it off. That's the strict instruction to all of you. So now let's start with this. So the first component of your unit one is that what are the various symbols and how they will be get used into the any system. Means whenever if you're going to use this electrical you're going to do any electrical wiring. So you're going to make some diagram. So while making this diagram, you require some type of signals. You cannot make it at a arbitrary. You should require some signals. So these signals will have some symbols, and these symbols will be discussed in today's class. So let's start with one by one. So if you see that what are these signals? So there are various signals that will be going to be discussed. So हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, and each components will have some simple some samples. So क्या क्या होते हैं? We have to study all these things and we are going to study this.
So various electrical symbols used in domestic and industrial installation and the power system, generator, transmission and distribution include such system are as per BIS code. So BIS code के अनुसार जो भी हमारे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन है या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है या भी जो पावर सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, दे विल बी गेट दे विल बी गेट रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स. तो क्या क्या सिंबल्स हैं, वी आर गोइंग टू सी दिस. तो द फर्स्ट सिंबल्स इज डायरेक्ट करंट. सो डायरेक्ट करंट के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इधर क्वांटिटी लिखी हुई है और उसका इधर सिंबल्स लिखा हुआ. तो यदि हमको डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करना है तो वी विल रिप्रेजेंट विद अ स्ट्रेट लाइन. इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. सो दिस विल शो यू द this symbols. Then we have a alternating current. So if you want to see this alternating current, so this is showing you the alternating current. तो alternating current को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाएंगे. तो alternating current या AC करंट को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पावर फ्रिक्वेंसी है तो उसको हम लोग भी सेम एज ए अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही यूज करेंगे. यदि apparatus and machine suitable either for DC or AC, means universal type of machine है, क्योंकि some type. तो जो भी यहाँ पे ऐसे मशीन जो डेट कैन बी यूज आइदर फॉर AC और DC, दोनों टाइप के मशीन के लिए जिसको यूज किया जा सकता है, तो उसको क्या कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक खड़ी लाइन और साथ में एक साइनसोइडल वेवफॉर्म. तो दिस विल रिप्रेजेंट यू बोथ द universal type of supply or universal type of apparatus machine. So nowadays some universal machine is also coming. If you are aware about this, यदि आप लोग को पता है तो आप लोग ये पढ़े होंगे यूनिवर्सल मोटर जो AC एंड DC दोनों पे काम करते हैं. So this is the kind of current जिसको हम लोग now second type of will be AC of M phase and frequency. M phase का मतलब क्या है कि जनरली हमारा जो सिस्टम है वो दो टाइप का होता है, इधर 1 फेज और 3 फेज. तो कैसे यदि रिप्रेजेंट करना है कि सपोज हमारा जो घरों में सप्लाई आती है वो मोस्टली सिंगल फेज होता है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है. तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन फ्यू कंट्रीज लाइक अमेरिका जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी 60 हर्ट्ज है. तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है सिस्टम की और कितना पेज सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि हम लोग यहाँ पे फेज लिखेंगे और साथ में लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और साथ में लगाएंगे छोटा सा साइनसोइडल सिस्टम. तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि सिंगल फेज सप्लाई है और उसकी जो सप्लाई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज 50 हर्ट्ज. तो यदि AC ऑफ M फेज एंड फ्रीक्वेंसी है तो M with a symbol of sinusoidal symbol of F with F. This is the way how you can represent any single order system. So AC single phase 50 hertz. Suppose we require to represent this into our system. तो इसको कैसे represent करेंगे? One this symbol and this 50 hertz. तो 50 हर्ट्ज क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है. फेज कितना है, सिंगल फेज है, इसलिए सिंगल फेज के लिए 1 लिख दिया और साथ में लिख दिया हम लोग 50 हर्ट्ज. AC 3 फेज 50 हर्ट्ज. तो यदि अब 3 फेज है तो क्या करेंगे, M की जगह हम लोग लिखेंगे 3 और साथ में लिख देंगे 50 हर्ट्ज. और क्या लिखा है, AC 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्टेज वोल्ट. तो इसमें क्या क्या दिया है, 3 फेज दिया है. सो M इक्वल टू कितना हो गया 3. फ्रीक्वेंसी हमारी
is 50 hertz, and we have this voltage as a voltage of the system is 415 वोल्ट. अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट. So this is a way how you can represent type of M phase and frequency, AC of the M phase and frequency. कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि if this is a single phase system, then we will represent to this like one with sinusoidal of 50 hertz. So इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यदि सिस्टम में न्यूट्रल भी है तो बहुत जगह न्यूट्रल सप्लाई भी हम लोग देते हैं. यदि न्यूट्रल सप्लाई दे रहे हैं तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जहाँ पे भी सिंगल फेज विथ न्यूट्रल 50 हर्ट्ज लिख लिया, यदि ये विथ न्यूट्रल मेंशन करेगा तो केस में क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन 3n. 3 तो हो गया फेज और साथ में न्यूट्रल है तो उसके लिए n, and 50 hertz supply will be this symbol with 50 hertz. So हमारा क्या हो गया? AC 3 phase with neutral 50 hertz. अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इस सिस्टम में, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? 3n 50 hertz. तो यदि सिंबल में हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? We will represent it with n. Similarly, AC 3 phase with neutral 50 hertz और साथ में दिया है 450 वोल्ट टू 240 वोल्ट बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल. तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे वोल्टेज भी मेंशन करना है. ऑलरेडी दिस वोल्टेज हैज बीन मेंशन विद दिस. सो इसको मेंशन करने के लिए क्या करेंगे? वी राइट डाउन 415 वोल्ट with this representation. So 3 phase with neutral 50 hertz frequency और 415 वोल्ट वोल्टेज, इन तीनों को लिखना रहेगा. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 3n sinusoidal symbol, then 50 hertz and then 415 वोल्ट. This is the way how you can write it down. Next is DC 2 conductor 100 वोल्ट. सो अब डीसी सप्लाई है तो डीसी सप्लाई को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट विथ अ सिंगल दिस सिंबल, दिस सिंगल स्टेट लाइन. सो सिंगल स्टेट लाइन को क्या कर देंगे हम लोग? 2 लिखेंगे. तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस, और तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? अब डीसी के केस में हम लोग क्या करेंगे? वी विल सी हाउ मच नंबर ऑफ कंडक्टर इज देयर. तो 2 कंडक्टर है तो उसकी जगह पे लिख दिए 2. डीसी सप्लाई है तो उसका लिख दिए स्ट्रेट लाइन, और 100 वोल्ट है 110 वोल्ट है तो इसके लिए लिख दिए 110 वोल्ट. सो दिस इज अ वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डीसी 2 कंडक्टर 100 वोल्ट. Then DC 3 conductor including neutral, so and 220 volt. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Whenever this neutral will come, that will be get associated with this. So अब न्यूट्रल को हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2n सिंबल विथ 220 वोल्ट लाइक दिस. सो न्यूट्रल है तो हमको यहाँ पे n लिखना पड़ेगा. यदि न्यूट्रल नहीं है so इस केस में we do not require to write down this n. This is the simple convention in which we can write down any system with the its conductors or the type of number of pages or its frequency, whether it is connected with neutral or not. All this information can be given by this symbol. So 3 फेज है तो 3 फेज के लिए 3 लिखेंगे. न्यूट्रल है तो उसके लिए n लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी साथ में दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है कि दिस सप्लाई विल बी
ऑलवेज AC। कैसा सप्लाई होगा? इस विल बी डेफिनेटली AC। और जब AC होगा तभी हम लोग को क्या दिया जाएगा? देन ओनली वी विल हैव द फ्रीक्वेंसी। यदि AC सप्लाई नहीं है तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है कि हमारे सप्लाई में यदि फ्रीक्वेंसी है, मीन्स यदि AC सप्लाई है तभी उसमें फ्रीक्वेंसी होगा। DC सप्लाई है तो उसमें क्या होगा? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो यदि जहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी दिखे, दैट मीन्स दैट द सप्लाई इज एन AC सप्लाई। और जब AC सप्लाई है तो उसको AC सप्लाई का सिंबल विच इज ए साइनसोइडल सिंबल, और साथ में फेज एंड दिस फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट। So that's the important thing that you have to understand कि कैसे हम लोग टाइप ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे। सो टाइप ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि DC को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, AC का हम लोग किससे करेंगे? एक साइनसोइडल सिस्टम से करेंगे, एक साइनसोइडल वेव फॉर्म से करेंगे। अब कितना फेज का सप्लाई है और कितना हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसको लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग 1 लिख देंगे विथ दिस साइनसोइडल सिंबल along with its फ्रीक्वेंसी। सपोज यदि 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे हम लोग 50 हर्ट्ज लिख दिए। 3 फेज है तो 3 फेज साइनसोइडल सिंबल विथ 50 हर्ट्ज। तो ये तरीका है किसी भी सिस्टम को किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ में उसकी कितनी वोल्टेज लेवल है, दिस ऑल थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देन वी हैव ए पॉजिटिव पोलरिटी एंड नेगेटिव पोलरिटी। तो पॉजिटिव पोलरिटी का मतलब क्या है कि आप लोग सबसे अच्छा एग्जांपल है कि घरों में आप लोग बैटरी देखते होंगे। तो जो भी बैटरी आप खरीदते होंगे उसमें देखते होंगे कि एक साइड पॉजिटिव बना है और एक साइड नेगेटिव बना है। तो सपोज आप अपना घड़ी है, घड़ी में हमको सेल लगाना है, तो सेल लगाने के लिए क्या करना होता है? यू विल सी दैट पॉजिटिव किधर लिखा है, नेगेटिव किधर लिखा है, और फिर पॉजिटिव साइड को ही हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव साइड को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग अपने बैटरी को भी देखते हैं, जो घरों में बड़ी बैटरी होती है उसमें भी देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव लिखा होगा, एक नेगेटिव लिखा होगा। और सिमिलरली वी कैन वही इसी तरीके से हम लोग उसको अपने इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि पोलैरिटी क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज इफ यू डोंट राइट डाउन द पोलैरिटी, यदि आप किसी भी सिस्टम पे पोलैरिटी नहीं लिखेंगे तो क्या हो सकता है? देयर आर मेनी चांस दैट एनी पर्सन कैन कनेक्ट द अपोजिट पोलैरिटी टू विथ ईच अदर। और यदि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए तो इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन? You will see that system may be get burn। हमारा सिस्टम क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, या सिस्टम खराब हो सकता है, या स्पार्क हो सकता है। तो this is why this is the most important thing that it should have a सब सिंबल्स। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख करते हैं? पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। तो पोलैरिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि वी राइट डाउन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ एनी सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम का क्या है कि हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। Then now next is symbol of lines। So अब हम लोग कितने टाइप की लाइंस देखते हैं? पहला है कि ओवरहेड लाइंस हो गया एंड अंडरग्राउंड केबल हो गया। दो तरीका है कि ओवरहेड, या तो हमारा लाइन क्या हो सकता है? ओवरहेड हो सकता है, या फिर हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा केबल होगा। दीज आर द टू वे दैट वी कैन रिप्रेजेंट द सिस्टम को। अपने लाइन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आइदर यूजिंग द ओवरहेड लाइन और विद द केबल। यही हमारा दो तरीका है। ओवरहेड लाइन में भी दो चीज है कि एक एग्जिस्टिंग ओवर लाइन है
कि एक सपोज ओवर लाइन जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जिस्टिंग। और एक क्या हो सकता है, प्लांट। प्लांट का मतलब क्या है कि वो हम लोग उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ इन नियर फ्यूचर वी विल गोइंग टू हैव अ वायर फ्रॉम दिस प्लेस। इस प्लेस से क्या है कि हम लोग अपने ट्रांसमिशन लाइन को लेके जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को लेके जाएंगे। सो इस तरीके का हम लोग वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि यदि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको क्या करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट इट विद द स्ट्रेट लाइन। और यदि प्लान्ड है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन विद सम डॉट, then again straight line, then again another dot, then again straight line. This is a way how we can represent lines or the cable. तो यदि लाइन है तो इसको इस तरीके से करना है। और यदि एग्जिस्टिंग है तो स्ट्रेट लाइन, प्लान्ड है तो स्ट्रेट लाइन विद डॉट। सो इस स्ट्रेट लाइन के साथ साथ क्या है, यदि वो केबल रहेगा तो उसको हम लोग को यहाँ पे मुझे अर्थ दिखाना पड़ेगा। केबल है तो मतलब क्या है कि अंडरग्राउंड केबल है, तो इसका क्या मतलब है कि अंडरग्राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे ये अर्थ को दिखा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बड़ा लाइन, फिर दिस स्मॉल लाइन, जैसे हम लोग अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ओवरहेड लाइन है तो जनरल सिंबल क्या है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन और उसके साथ में यहाँ पे एक उसमें सर्किल बनाएंगे। तो कोई भी सिंबल है क्या है, वी विल रिप्रेजेंट इट बाय दिस। लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग को ओवरहेड लाइन को रिप्रेजेंट करना है, सो दैट विल बी यूजिंग स्ट्रेट लाइन विथ सर्किल। और केबल को रिप्रेजेंट करना है तो स्ट्रेट लाइन with a earthing symbols. So this is the way how we can represent the symbol of the lines, की lines को represent करने का ये तरीका होता है। Then we have a conductor. So conductor क्या है, तार। तो wire, तो wire क्या है, that can be represented with the various sources, various variety है उसका। तो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, कंडक्टर आर ग्रुप ऑफ द सेवरल कंडक्टर। तो यदि वो कैसा कंडक्टर है, ओनली फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब क्या है कि ऐसा कंडक्टर जिसको हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं, हम लोग उसको कुछ उसको शेप नहीं दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको मोड़ नहीं सकते हैं। सो उस तरीके के कंडक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, द कंडक्टर विच विल बी रिमेन्स अनशेपेबल, जिसका कोई शेप नहीं दे सकते। सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। और ऐसा कंडक्टर जिसको हम लोग शेप दे सकते हैं जरूरत पड़ने पे, सपोज इफ सम कॉर्नर इज कमिंग और समथिंग इज कमिंग, इन दैट केस दिस विल बी नोन एज ए फ्लेक्सिबल कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लेक्सिबल कंडक्टर बोलेंगे। एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लाइक दिस, लाइक दिस लाइन। इस तरीके के लाइन को हम लोग उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे। So you use one or several half circle reversely draw. So two half circle are never to be used because of the possible confusion with the symbol of alternating current. तो alternating current के symbol इसके साथ हमारा इसका confusion ना हो, इसलिए इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो साइनसोइडल वेवफॉर्म ना लगे, ये इस बात का ध्यान रखना है। यूज वन और सेवरल हाफ सर्किल रिवर्सली ड्रॉन, तो एकदम जितना इधर ड्रॉ किए उतना ही ऊपर ड्रॉ किए। तो ये सर्किल ड्रॉ करना है, ना कि एक हम लोग को शेप देना है। शेप जैसे मतलब शेप लाइक अ इलिप्स का हम लोग को कोई शेप नहीं देना है, या पैराबोला का कोई शेप नहीं देना है। एग्जैक्टली हाफ हाफ सर्किल ड्रॉ कीजिए, फिर उसके ऊपर भी वैसे ही हाफ सर्किल ड्रॉ कीजिए। अभी जो कंडक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ द कंडक्टर जिसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो देयर आर
वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टर। सो इन वेरियस टाइप के कंडक्टर को अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सपोज कीजिए कि दिस इज एन सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन में क्या है, टू कंडक्टर है। तो लाइन हमारा सिंगल है, तो उसका क्या मतलब होगा कि एक स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं और उसके साथ दो कंडक्टर है। तो सिंगल लाइन का मतलब क्या होगा कि आप घरों में देखते होंगे कि अपने आसपास देखते होंगे कि पोल है। तो कभी कभी पोल पे क्या होता है कि सिर्फ दो कंडक्टर जा रहे हैं और एक सिंपल तरीके से जा रहे हैं। तो यदि वो सिंगल लाइन रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और मल्टीपल लाइन का मतलब क्या हुआ कि मेनी टाइम्स यू विल सी डेट एक साथ बहुत सारे लाइंस जाते हैं। लाइंस का मतलब क्या, ट्रांसमिशन लाइन को देखा जाए तो वहाँ पे देखा जाएगा कि बहुत सारे लाइंस आपस में एक साथ जाते हैं। जहाँ से सपोज सब स्टेशन है, सब स्टेशन से बहुत सारी लाइंस वहाँ पे आती है और बहुत सारी लाइंस बाहर निकलते हैं। तो यदि सिंगल लाइन आ रही है, जो जनरल कन्वेंशन है इन आवर अराउंड द होम, कि गांव में जैसे पोल पे, छोटे छोटे पोल पे दो लाइन, दो कंडक्टर को दिखाया जाता है। तो यदि वो सिंगल लाइन है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि मल्टीपल लाइन है तो वहाँ पे जितने मल्टीपल लाइन रहेंगी उतना को हम लोग उतनी बार यहाँ पे कर देंगे। वैसे थ्री कंडक्टर है, और थ्री कंडक्टर में सिंगल लाइन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस यदि आप लोग देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है कि एक साथ हम लोग को थ्री दो पेज, एक दो फेज और एक न्यूट्रल लेके जाना पड़ता है। तो उस केस में थ्री कंडक्टर हुआ तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो की जगह थ्री कंडक्टर कर देंगे, और यदि मल्टीपल लाइन से एक साथ गुजर रही हैं तो वहाँ पे हम लोग थ्री लाइन को ऐसे डाल देंगे। सो एन कंडक्टर हुआ तो उसका क्या मतलब है कि उसको हम लोग चार कंडक्टर को यहाँ पे लिख देंगे कि एन इक्वल टू फोर, उतना लाइन हम लोग को रिप्रेजेंट कर देना है। तो यदि फोर कंडक्टर है तो मतलब सिंगल लाइन चार बार हम लोग को एक खड़ी पाही डालना है, मल्टीपल लाइन है तो चार बार हम लोग को इस तरीके से लाइन को बनाना है। तो दिस इज अ सिंबल कि कितना कंडक्टर मतलब कितना वायर हम लोग के आसपास से गुजर रहा है, दैट विल बी शोन बाय यूजिंग दिस लाइन। सो दिस लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग का कितना वायर किसी सर्किट में से जाएगा, या कितना वायर हम लोग को जरूरत पड़ेगी। These all things can be represented by this conductor things. The next type of signals are the terminal and connection of the conductor. So next is whenever we going to do wiring, so वहाँ पे क्या है, बहुत सारे हमको जंक्शन मिलेंगे या टर्मिनल मिलेंगे। टर्मिनल का मतलब क्या है कि सपोज हम लोग एक मेन सप्लाई लेके चलेंगे फ्रॉम आवर मेन सप्लाई, और वो मेन सप्लाई क्या है कि पूरे घर में उसको पहुंचाना है। सो वेन एवर वी गोइंग टू इंस्टॉल एनी सॉकेट, देन वहाँ पे क्या करना है, या इफ एनी particular room is come, then in that case what will be happen, we will give one junction to this, एक वायर वहां से आएगा पैरेलल कनेक्शन में, बाकी तीनों सप्लाई आगे चली जाएगी, और साथ में उस रूम को भी हमको सप्लाई देना है। तो जैसे तो उस केस में क्या करेंगे, वी विल टेक द सप्लाई फ्रॉम दिस मेन वायर फॉर दिस पर्टिकुलर रूम, और अपने रूम में लाके हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जो भी हमारे स्विचेस हैं उसमें सप्लाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जंक्शन बना दिए, हम लोग क्या बना दिए, एक जंक्शन बना दिए। तो यदि जहां जहां हमको जंक्शन दिखाना है उसका मतलब क्या होगा कि ये आगे आएगी, सप्लाई हमारी यहाँ से आ रही है और वो आगे भी जा रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टैप करके एक पर्टिकुलर जगह पे उसको यहाँ पे ले भी रहे हैं, मतलब सप्लाई भी यहाँ से ले रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल और जंक्शन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी रूम में सपोज हम लोग वायरिंग कर रहे हैं और कोई रूम है, एनी रूम इज देयर, सो the main supply wire will go from one place to another place, and if you required any supply from that, so what will we do, you will put and cut on this, connect your wire, and then take the supply from that main supply. तो जहाँ पे हम लोग उस वायर को कनेक्ट करेंगे टू द मेन सप्लाई, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन बोलेंगे। और उस जंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अ टी। टी का मतलब क्या हुआ कि इधर से सप्लाई आ रही है और आगे भी जा रही है, लेकिन बीच में हम लोग एक और वहां से सप्लाई ले रहे हैं। मीन्स यहाँ से हम लोग क्या किए, एक पर्टिकुलर जगह के लिए हम लोग सप्लाई ले रही है। बेटर एग्जांपल यू कैन सी फ्रॉम ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर आ रहा है, सो एक पोल पे आके वहां से ट्रांसफार्मर से बहुत सारे वायर निकले, उस वायर में से लोग अपने घरों में से लेने के लिए क्या सप्लाई लेते हैं। ट्रांसफार्मर में से जो कनेक्शन जो वायर निकल रही है वहां से क्या है, हम लोग अपने घरों के लिए सप्लाई लेते हैं। So that place where you will going to connect your cable will be known as a junction or the terminal of the system. Then we have a double junction or the conductor. So बहुत बार ऐसे देखेंगे कि एक ही जगह पे बहुत सारे कनेक्शन लेने पड़ेंगे। मीन्स बाथरूम के लिए अलग देना है, देन रूम के लिए अलग देना है, या हॉल के लिए अलग देना है। हॉल में ही दो अलग अलग जगह पे हमको बोर्ड लगाए हैं, तो उस बोर्ड के लिए अलग सप्लाई चाहिए, दूसरे बोर्ड के लिए अलग सप्लाई चाहिए। तो वहां पे क्या करेंगे, देयर विल बी हैपन अ डबल जंक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो डबल जंक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या है कि that dot will become, so this will be move in this direction, this dot will become and this will be move in this direction। मीन्स क्या है कि मेन सप्लाई ये है और इस मेन सप्लाई से क्या हो रहा है, डबल डॉट को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग विदाउट द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जिसमें कोई दो तार आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब ऐसे आप कुछ ऐसे जगह भी आ सकते हैं जहाँ पे क्या है कि हम लोग दो तार को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन दोनों तारों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सो यदि कोई कनेक्शन नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, we represent it like one straight line in this, one straight line in this, and they will be not get any connecting। so जैसे यहाँ पे हम लोग इसको डॉट से कनेक्ट कर रहे हैं या दिस सर्कल से कनेक्ट कर रहे हैं, and there will be no signals will be appear। so this is a one conventional। other conventional is that uh, like we will make a one half circle here। जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एक हाफ सर्किल बना देंगे और फिर इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे। सो यदि कोई कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी और जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है इसके जगह पे हम लोग ऐसे हाफ सर्किल बनाएंगे इस तरीके से और फिर आगे स्ट्रेट लाइन वापस जाएगी। So these are the way how we can represent terminal and connection of the conductor। Next is various type of circuit element। so circuit element को अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर्किट एलिमेंट क्या होता है, पहला क्या हुआ, नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस और नॉन रिएक्टिव रजिस्टर। सो नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, ऐसा रजिस्टर जिसमें किसी भी प्रकार का
इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं। ऐसा वायर जिसमें किसी प्रकार का ना कोई इंडक्टेंस है और ना ही कोई कैपेसिटेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस और नॉन रिएक्टिव रजिस्टर। तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन ब्रैकेट वी विल राइट डाउन, इन स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट डाउन आर। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? राइट डाउन आर। सो दिस विल रिप्रेजेंट द, so other person will understand that this is a pure register। प्योर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? आर। इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस का मतलब क्या होगा? that particular things will have some inductance as well as capacitance as well as resistance। I are either any two, means या तो inductance resistance या inductance capacitance or रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। तो यदि ये तीनों चीजों में से कोई दो चीज प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज ए इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? इन स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट डाउन जेड। दिस इज द वे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इम्पीडेंस। देन वी हैव इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस का क्या मतलब है? कि द थिंग्स दैट इज representing only which has only inductor। so इंडक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव नेचर है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? कि दो सिम दो पैरेलल लाइन एंड देन दे विल बी कनेक्टेड यूजिंग one this cross line। so this is a way how we can represent the various type of this circuit element into the system। तो यदि हमारा सिस्टम है तो उसका यदि सर्किट एलिमेंट्स हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज द आवर वेरियस वे हाउ वी कैन represent it। So for today I am stopping here। we will continue this discussion tomorrow। so let me take your attendance and then you can। so जो लोग प्रेजेंट हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आपको कोई यस सर नो सर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। यदि किसी का नाम मिसिंग होगा देन जस्ट इन्फॉर्म टू मी। तो आज जो लोग प्रेजेंट है वो हैं अभिषेक बनर्जी, अभिषेक कुमार भदौरिया, अभिषेक सिंह भदौरिया, अमरजीत रॉय, अशोक कुमार केवट, आयुष गुप्ता, दिलीप सिंह गोयल, देन मेहरुद्दीन अंसारी, नजीस अहमद, पवन कुमार, प्रवेश कुमार जोशी, राहुल पचौरी, रवि कुमार, शैलेश सिंह शैलेश कुमार, शिवशंकर कुमार, सुभानी शेख। इतने लोग प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई प्रेजेंट है? Okay, so thank you everybody। we're going to meet tomorrow at same time। until then good good night to all of you। गुड नाइट सर। Okay।